Good morning. Okay, ಹೊಸ ದಿನ ಹೊಸ ಜಾಗ. Okay, but actually we're starting off. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೀಚ್ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ಗಢ್ ಬೀಚ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್. ಐ ವಾಸ್ ಟು ಟಯರ್ಡ್. ಐ ಟುಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸುತ್ತೋದು ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋದು ಕಾಣ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 weeks. ಈ ಇನ್ನೊಂದು 3 days ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 3 weeks ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಏನು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಥಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಂಕರೇಜ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ರತ್ನಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಕ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನಾನು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟುಡೇ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಆಯಿತಾ, ಈ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್? ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆಯಿತಾ, ನಿಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಏನು ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಫ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು 9-10 ತನಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಗಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಜಾಗ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್. ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಂಡಿಂದ ದೇ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಬಟ್ ಕಾಮ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಬನ್ನಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾಯಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ. ವಾವ್, ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದಲ್ಲ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಕೆಲಸ, ಆಯಿತಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಡು. ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೀಚ್ ಸೌಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸಮುದ್ರದ್ದು, ಆಯಿತಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೇವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓ, ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನು ವ್ಯೂ. ಓ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ವಾ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಮ್, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಾಟರ್. ಮೇಲೋದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಥರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತೆ. ಜಿಪ್ ಲೈನ್, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ. ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಚೆನ್ನ. ಬನ್ನಿ, ಲವ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓವರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಚ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಎಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಏಯ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೇಕೌಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀರಾ? ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್. ಓ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ವ್ಯೂ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪೀಸ್. ವಾವ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗೋದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೈರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು 10 o'clock ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ. ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ 2 ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ. 2 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡಮಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ? 4 ಗೋಡೆ ನಾಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಜಯದುರ್ಗ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಇದೇ ಬೀಚಾ? ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಚ್, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಣಲ್ವೇ ನನಗೆ? ಕ್ಲೀನಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಟೈಮ್ 9:30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ರಿವ್ಯೂನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಯಾರು ಕೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮೇಲೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಬೀಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಚ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. आपका नाम? मेरा नाम परशुराम प्रकाश धुरी। परशुराम प्रकाश धुरी। ओके, लोकल हो आप? लोकल यहाँ के विजय। तो ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ವಿಜಯದುರ್ಗ ಬೀಚ್ ಅಂತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಫೋರ್ಟ್. ओके, ये किसका फोर्ट था? ये राजा भोज ने बांधा था 12वीं सदी में। 5 एकड़ में बांधा, जो अंदर का आपको 5 एकड़ का जो हिस्सा दिखे वो राजा भोज के टाइम का है, 12वीं सदी का। ओके, तो आप बोल रहे थे ये राजधानी है? हाँ, राजधानी। क्या किसका राजधानी था? जितना जलदुर्ग है, पानी के अंदर का जितना जो किला है उसका ये मेन है, राजधानी है किला। तो आप बोल रहे थे कि कहाँ? रत्नदुर्ग? हाँ, रत्नागिरी का रत्नदुर्ग है। मालवन का सिंधुदुर्ग। करेक्ट। जंजीरा जितना किला है पानी के अंदर का, इसका मेन है, राजधानी है ये। ओके, ये छत्रपति शिवाजी का अपना गढ़ का राजधानी देखो रायगढ़ है। हाँ, वैसा जलदुर्ग का राजधानी है विजयदुर्ग। ओके ओके, मेन किला। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी रहते थे? नहीं रहते थे, यहाँ पे एक ही दिन आके गए, लेकिन कान्होजी आंग्रे रहते थे, आरमार प्रमुख। वो इधर रहते थे। उनका बेटा संभाजी आंग्रे वो भी इधर ही रहते थे, एक किले में, मराठा आरमार प्रमुख। ओके, गुड। तो ये टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते, थोड़ा कम ही है, थोड़ा कम। ये लास्ट है ना एकदम, इसके आगे कोई गांव नहीं है। ओके, ये लास्ट है सिंधुदुर्ग का, इसलिए यहाँ से वापस। ओ, सिंधुदुर्ग का ये पूरा लंबा? ये जिला सिंधुदुर्ग का, सिंधुदुर्ग जिला है। तो यानी कि जो किला देखा था सिंधुदुर्ग, वहाँ से यहाँ तक वही है ना? वो नहीं, उसके आगे आजू बाजू वाला गांव भी वो सिंधुदुर्ग जिले में ही आता है। ओके, वो साइड का जो खाड़ी है, ये अपने जेटी के बाहर खाड़ी है, समुद्र का पानी, वो साइड का जो भाग है वो रत्नागिरी जिला है पूरा। ओके ओके, ये साइड का सिंधुदुर्ग जिला ओके। तो ये सिंधुदुर्ग का आखिरी लास्ट है ये गाँव। ठीक है, थैंक यू भाई, जाके अंदर जाके देख लो। थैंक यू। बोटिंग मीटिंग करने वाले हो क्या? नहीं अभी नहीं, बहुत कर चुके। पूरा राउंड है, किला पूरा चारों बाहर से दिखाओगे? हाँ, बाहर से इधर तक आते हैं वापस अपन। पूरा घूम के 17.5 एकड़ का किला है इधर आके। कितना किला है? 17.5 एकड़ का है। 17 एकड़ का, ओके। कितना टाइम लगता है फुल पूरा? बोटिंग का आधा घंटा है। पूरा किला आपको अंदर से घूमने का रहेगा तो 1.5 घंटा मांगते पूरा। किला गाड़ी अंदर भी जाएगा? नहीं, गाड़ी अंदर नहीं, गाड़ी इधर ही रुकेगा। इधर, ओके। उधर से आपको चल के जाना पड़ेगा। तो आपका क्या रेट है? कैसा मालूम है, स्पेशल रहेगा ना तो एक ही आदमी रहेगा तो 800-900 रुपये हो जाएगा। ग्रुप में तो? ग्रुप में रहेगा तो 150 रुपये टिकट है। तो ग्रुप कब आएगा? ग्रुप का भी अभी थोड़ा कम है, आज सीजन थोड़ा स्लैक है ना अभी। कल से आदमी लोग आएगा, शनिवार रविवार को बहुत आता है इधर। ओके, देखता हूँ मैं घूम के बाद में डिसाइड कर। थैंक यू। ओके ನೋಡಿ, ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ಟ್, ಯಾವ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ಅದು ದೇವ್ಗಢ್ ಫೋರ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಗೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಾ? ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ತೀರ ಒಂದು ದಿವಸ. ಸೊ ಮನೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಆಚೆ ಬರೋದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೇ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಫೋರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹುಡ್ಕೋದು ಹೆಂಗಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ. ಮೇಲಿದೆ ಫೋರ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಗೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾರಂತೆ.
ಗೈಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಟಿಕೆಟಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ತರಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಶ್ ತರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟು. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಶಾಪಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ವ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಜಾಗ, ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಜನಗಳಪ್ಪ ಆವಾಗಲೇ. ಕಮಾನ್, ಈ ಸಂಧಿಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಧಿ, ಆದರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಗ್ಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ, ಆಯಿತಾ? ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಏನು ಇವ್ರನ್ನ ಗೈಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಕ ನಾಮ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಜೈತಾಪ್ಕರ್. ಯಶ್ಪಾಲ್ ಜೈತಾಪ್ಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಗೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಗೋ ಯಶ್ಪಾಲ್. सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के ऊपर आपका स्वागत है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का हेडक्वार्टर था, यानी मराठाओं का नेवी की जलदुर्ग की राजधानी थी। सागरी किलों की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मानना था कि जिसके समुन्दर के ऊपर जहाज रहेंगे उसका समुन्दर रहेगा। करेक्ट। इस हिसाब से उन्होंने 16वीं सदी में भारत में नेवी की स्थापना की थी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी या भारतीय आरमार का जनक कहा जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ रूढ़ी परंपरा थे। समुद्र प्रवास करना नहीं था, समुद्र उल्लंघन नहीं करना था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये रूढ़ी परंपरा बाजू में रख दिए और उन्होंने एक मजबूत नेवी समुद्र पे खड़ी कर दी। क्योंकि उनका ये 350 साल पहले दूरदृष्टिकोण था, यानी विचार था कि अपने हिंदुस्तान को जो धोखा है वो पानी की तरफ से ही है। करेक्ट। इसलिए शिवाजी महाराज ने नेवी की स्थापना की थी। आज देखो 350 साल के बाद में बम्बई में 92-93 में जो बॉम्ब अटैक हुए वो सब पानी की तरफ से ही उसकी हलचल या सूत्र हिले थे। बाद में जब 26/11 को कसाब आया, 26/11 को जब कसाब आया, वो भी पानी की तरफ से ही आया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये समुन्दर से होने वाला धोखा पहले ही जान लिया था। ब्रिटिशों, अंग्रेजों का या पुर्तगालियों का धोखा भी जान लिया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी की स्थापना की। वेरी गुड। आज हम किला देखने वाले हैं, ये 800 साल पुराना किला है। यानी ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया नहीं था किला, लेकिन इसको जीतने के बाद में बढ़ाया था किला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला जीता है 1656 को। 1656 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीता था। लेकिन 800 साल पहले 1195 यानी 1195 टू 1205 ये किला बनाया था राजा भोज ने। हाँ, ये राजा भोज मध्य प्रदेश के थे। भोपाल उनकी राजधानी थी। जब 11वीं सदी में उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था तो एक कोकन जीत के यहाँ पे उन्होंने ये 5 एकड़ का घेरिया नाम का दुर्ग बनाया था। घेरिया क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे गिरिये नाम का एक गांव है और गिरिये गांव में पानी से पूरा घिरा हुआ था। यानी इसको चारों बाजू से पानी था, इसलिए उसको पानी से घिरा हुआ, इसलिए उसको घेरिया कहा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में ये जीत लिया था। उसके 500 साल में अनेक राजाओं ने यहाँ पे सत्ता की है। यानी 1218 में देवगिरी के जो यादव थे, यानी मराठाओं का बहुत बड़ा साम्राज्य था यादवों का, देवगिरी के, तो उन्होंने अटैक किया कोकण प्रांत पे और 1218 में ये किला भोज राजा से जीत लिया था। 1354 में विजयनगर के कृष्णदेवराय यानी वो हरिहर बुक्का ने स्थापन किया था विजयनगर साम्राज्य, और कृष्णदेवराय ने उनका साम्राज्य विस्तार किया था। तो उन्होंने कोकण जब जीता था तो 1354 में ये किला जो था ये विजयनगर के अंडर में गया था। 1431 तक यहाँ पे विजयनगर का साम्राज्य था। 1431 में बहामनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह इन्होंने वापस कोकण पे बड़ी सवारी की थी, बड़ा आक्रमण किया था और ये कोकण प्रांत और ये किला विजयनगर से जीत लिया था। 1431 से लेकर 1526 तक यहाँ पे बहामनी का राज्य था और बहामनी साम्राज्य के जब 5 टुकड़े हो गए तब बीजापुर की जो आदिल शाही थी उस आदिल शाही के अंडर में ये 5 एकड़ का किला चला गया 1526 से लेकर 1656 तक। और 1656 में शिवाजी महाराज ने ये दुर्ग जो था वो आदिल शाही से
युद्ध न करके, युद्ध नहीं किया, जंग नहीं किया, ओके इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज में जीत लिया है, जिसको मराठी में तह बोलते हैं। आदिल शाह ने हाँ नहीं, ओके आदिल शाही से राजा ने, हाँ छत्रपति ओके शिवाजी महाराज ने इसको कॉम्प्रोमाइज में जीत समझ लिया गया था। ओके तो शिवाजी महाराज ने पहले जो जावली प्रांत है महाबलेश्वर के नीचे, वहां पे मोरों की सत्ता थी, चंद्राराव मोरे करके, तो वो भी बड़े स्ट्रांग मराठा सरदार थे, तो वो आदिल शाही के लिए काम करते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप आदिल शाही के लिए काम मत करो, आप हमारे लिए काम करो, मराठा हम सब इकट्ठा होते हैं और इन मुगलों को या आदिल शाह को अपने मातृभूमि से बाहर खदेड़ देते हैं। तो ये मोरे बोलते थे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, यानी वो खुद को चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज मानते थे, और हम महाराष्ट्र के राजा है, तो शिवाजी कौन कौन से राजपूत वो हमारे ऊपर आके राज्य कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो शिवाजी महाराज को मानते नहीं थे। तो शिवाजी महाराज ने, जो हिस्ट्री में किसी को नहीं हुआ, जावड़ी में जाके उन मोरों का पराभव करना, उनको हराना, तो शिवाजी महाराज ने जावड़ी में जाके उस मोरों को हरा दिया, जंग में हरा दिया। जावड़ी के जो मोरे थे वो भाग के रायरी में चले गए, एक रायरी नाम का प्रांत है जिसको हम रायगढ़ बोलते हैं, वो रायरी में चले गए। बाद में शिवाजी महाराज ने रायरी पे ऊपर अटैक किया, रायगढ़ जीत लिया। रायगढ़ जीतने के बाद में शिवाजी महाराज की जो सीमाएं थी वो बढ़ने लगी थी, और रायगढ़ जीतने के बाद में वो सीमा समुंदर को आके लग गई। रायगढ़ नजदीक है समुंदर के, समुंदर को सीमा लगने के बाद में इधर के जो मछुआरे थे या इधर के समुंदर के नजदीक रहने वाले स्थानिक मराठी आदमी थे, उन्होंने शिवाजी महाराज के पास ये किया, जाके उनकी मीटिंग की कि ये जंजीरा का जो सिद्धि है वो हमेशा किनारे पे आता है, हमारे लड़कियों को भगा के लेके जाता है, लड़की औरतों को भगा के लेके जाता है, जबरन गर्दन पे तलवार रख के धर्म परिवर्तन करता है, तरुण लड़कों को उठा लेता है और उनको गुलाम बना के अरबस्तान में बेच देता है। तो इस जंजीरा की सिद्धि को कुछ आप कंट्रोल करो, और अगर वो इनका मानना नहीं मानता है जंजीरा की सिद्धि के, तो वो इतना क्रूर था कि वो लोगों के नाक और कान काटता था। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने तय किया कि इस जंजीरा की सिद्धि को जो अपने को टफ देने का है, तो अपने के पास नेवी चाहिए, जहाज चाहिए समुंदर के ऊपर, क्योंकि उसके सब कारोबार जहाज के ऊपर चलता था। तो शिवाजी महाराज ने तय किया कि हम जहाज बनाएंगे। तो अपने इंडियन आदमी के पास इतना टेक्निक नहीं था जितना ब्रिटिश और पुर्तगाल के पास था जहाज बनाने का, मराठाओं के पास इतना टेक्निक नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने उनके पुर्तगालियों के 500 कर्मचारी, एक आदमी अपने पास वेतन यानी पगार देके उनको काम पे रख दिया। अभी शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा दुर्दैव यही है कि शिवाजी महाराज को अपने आदमी को समझाने के लिए अपनी आधी जिंदगी चली गई। लेकिन जब पुर्तगालियों को पता चला कि मराठा हमारा आदमी लेके समुंदर के ऊपर बड़ा जहाज बना रहा है, तो उन्होंने अपने धर्मगुरु सेंट उनके पास भेज दिए। तो उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया। किसका? शिवाजी महाराज? नहीं, वो सेंट जो थे उन्होंने शिवाजी महाराज ने जो 500 आदमी काम को रखे थे ना, उनका ब्रेन वॉश किया कि आप मराठाओं को मदद मत करो, या अगर आपने मराठाओं को हेल्प कर दी तो मराठा का नेवी तैयार हो जाएगा और बाद में अपने को समुंदर के ऊपर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने अपने देश का या अपने धर्मगुरुओं का मान लिया और शिवाजी महाराज की नौकरी छोड़ के वो एक रात में चले गए। अभी शिवाजी महाराज के पास एक बड़ा सवाल खड़ा रहा कि समुंदर के ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया है, तो ये जहाज बनाएगा कौन? तो उस टाइम पे जो मराठाओं यानी शिवाजी महाराज का एक अलग सोच रहती थी, वो हमेशा आगे के सोचते थे। तो शिवाजी महाराज ने पहले ही सोच लिया था कि ये पुर्तगाली कभी भी अपने को धोखा दे सकते हैं, इसलिए शिवाजी महाराज ने 500 पुर्तगालियों के अंडर में कुछ अपने मराठा कारागिर रखे थे। तो उन्होंने उनकी कला विद्या सीख ली थी। और शिवाजी महाराज ने जब पूछा कि आप जहाज बना सकते हो क्या, तो वो बोले कि हम इनसे भी बेहतर बड़े जहाज समुंदर के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। तो शिवाजी महाराज की नेवी बाद में जो बनाई है वो अपने मराठी लोगों ने ही बनाई है। तो ये शिवाजी महाराज का दूरदृष्टिकोण था। उसी ये 1656 की शिवाजी महाराज की इस कोकण एरिया की सबसे बड़ी सवारी थी। यानी महाराज जावड़ी जीते, रायरी जीते, संगमेश्वर में जहाज बांधने के कारखाने खड़े कर दिए, और शिवाजी महाराज उसी 1656 में रत्नागिरी राजापुर से
गोवा के पोर्तुगीजों के मिलने के लिए जा रहे थे। तब शिवाजी महाराज इस सामने वाली पहाड़ी एरिया में थे। ये पहाड़ी एरिया है ना, ओके ये रत्नागिरी का राजापुर प्रांत है, राजापुर है। अगर आप इस राजापुर को बाय रोड जाओगे तो 50-55 किलोमीटर अंतर है, लेकिन आप ये बैक वाटर से क्रॉस करके जाओगे तो 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर खाली ये रास्ता है। ओके तो शिवाजी महाराज ये जब ये पहाड़ी पे थे तो शिवाजी महाराज ने इस राजापुर नाम के जो गांव है, यहाँ पे जो बारूद का गोदाम था आदिल शाही का, वो ब्लास्ट कर दिया। तो वो ब्लास्ट होने के वजह से आदिल शाही को डर लगने लगा कि ये आदमी हमारा कोकण इलाके में नुकसान कर देगा, इसलिए शिवाजी महाराज को उन्होंने एक किला कॉम्प्रोमाइज अभी देखो सर, एक बारूद का गोदाम उद्ध्वस्त होने से आदिल शाही डरी नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज पे नहीं उतरी थी। इतनी बड़ी आदिल शाही एक बारूद के गोदाम से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज में उतरेगी। इसके एक कारण है, क्योंकि शिवाजी महाराज जब यहाँ पे आए थे तब उनकी उम्र थी 26 साल की। ओके। और शिवाजी महाराज ने राजकारभार हाथ में लिया था उम्र की 13 साल में, 13 या 14 साल में। और आगे राजकारभार हाथ में लेने के बाद में आगे आने वाले 13 साल में देखो, जो 350 साल में किसी ने उनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ या आदिल शाही के खिलाफ बगावत नहीं की है, वो शिवाजी महाराज ने की थी। यानी 350-400 साल में किसी ने इतना आदिल शाही का नुकसान नहीं किया था। शिवाजी महाराज ने रोहिड़ा जीत लिया, तोरना जीत लिया, पुरंदर जीत लिया, कल्याण भिवंडी लूट ली, जावड़ी जीत के वहां पे प्रतापगढ़ किला बना रहे हैं, रायरी जीत ली, रायगढ़ बना रहे हैं। और जो मुगलों के 5 वंशजों को नहीं जमा, यानी मुगल देखो अपने 5 पीढ़ियां तख्त पे गुजार दी, लेकिन उन्होंने आर्मर या उनका नेवी का बेस नहीं था कहाँ पे। तो शिवाजी महाराज ने उम्र की 26 साल में नेवी की स्थापना की। ये 350 साल 400 साल में ये किसी ने नहीं किया था मुगलों या आदिल शाही के खिलाफ, वो शिवाजी महाराज ने किया था। और ये आदिल शाही या मुगलों को डर था कि ये आदमी वापस अपने इलाके में आके, कोकण इलाके में आके बारूद का गोदाम उद्ध्वस्त किया है और आगे जाके वापस नुकसान करेगा। इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया राजा से कि आप हमारा यहाँ पे नुकसान मत करो, आपके ये जो किला है एरिया, ये आपको ले लो। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज को ये किला 1656 में कॉम्प्रोमाइज में मिला। बाद में शिवाजी महाराज को पता चला कि ये किला कमजोर है, 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक कोई भी आता है जीत के जाता है। करेक्ट। तो अपने पास से ये जितना नहीं चाहिए, इसलिए शिवाजी महाराज ने 1664 को जो सूरत लूट लाई, वो सूरत लूट का संपत्ति जो था वो सिंधुदुर्ग किला बनाने के लिए, और वो कहाँ मालवन में वो बनाने के लिए और इसका विस्तार बढ़ाने के लिए ये किया है। वेरी गुड। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो किला बनाने के लिए 1 कोटी होन खर्च किए, और ये किला विस्तार करने के लिए 12.5 लाख होन खर्च किए। 1 होन यानी 3 ग्राम 20 मिली का एक सोने का सिक्का था तब। तब यानी आज के 3 ग्राम 20 मिली की वैल्यू है 14 या 15 हजार। करेक्ट। ऐसे 1 कोटी होन वो किला बनाने के लिए और 12.5 लाख होन इस किले को बढ़ाने के लिए छत्रपति ने खर्च किए थे। शिवाजी महाराज के उतना गोल्ड था हमारे पास। हाँ वाह सर, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में 400 से अधिक किले हैं। ओह गॉड। ओके। सोचो सर, 2 किलो के लिए इतना पैसा खर्च किया है, 400 किलो के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा। करेक्ट। शिवाजी महाराज का एक अष्टप्रधान मंडल था, यानी उनके 8 मंत्री थे। उनको शंका थी कि महाराज अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी संपत्ति किले बनाने के लिए क्यों खर्च कर रहे। तो आप हिस्ट्री में देखो, अनेक राजा का उल्लेख मिलेगा, अनेक बादशाहों का उल्लेख मिलेगा, तो उनमें नजर आता है कि इसने ये बनाया, उसने वो बनाया, यानी अपना संपत्ति ऐसा बनाया कि ऐसा खर्च किया कि उसका याद रह गया। Correct. लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको बताया कि अपने ऊपर जो दुश्मन है वो औरंगजेब है, जिसके पास 3.5-4 लाख की बड़ी फौज है। उस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी मुगलों की थी। वो 3.5-4 लाख की फौज लेके जब महाराष्ट्र में आएगा तो उसको एक फोर्ट जीतने के लिए 1 साल लगेगा। ओके। 372 किलो जीतने के लिए 372 साल लगेंगे, यानी वो मराठाओं को हरा नहीं सकता। ओके, वेरी गुड थॉट। ये शिवाजी महाराज का मानना था। अभी देखो शिवाजी महाराज कब गए, यानी गुजर गए 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज गए। औरंगजेब कब मरता है? औरंगजेब मरा है 1707 को, यानी शिवाजी महाराज के गुजर जाने के बाद में 27 साल औरंगजेब जिंदा था। उसने पहले संभाजी महाराज को हराने का प्रयत्न किया। उन्होंने कसम खाई है औरंगजेब ने कि
एक एक आलमगीर बादशाह ऐसा होगा हम्म जो खुद जंग पे मरेगा, हम्म जो खुद जंग पे मरेगा, नहीं तो संभाजी को खत्म कर देगा। ओके वो बोलता है कि संभाजी जैसा बेटा मेरा होता हम्म तो मेरी मैं बादशाही उसके नाम कर देता, हम्म और मैं कहाँ पे तो मस्जिद में जाके वो जपमाला खींचते रहता। हम्म यानी उतना वो संभाजी से प्यार भी करता था, उसको मालूम था। वो खुद बोलता है कि शिवाजी से ज्यादा संभाजी पराक्रमी है। हम्म इतना उसको उसके ऊपर प्यार भी था और गुस्सा भी था। हम्म जो शिवाजी महाराज ने नहीं किया है ना, वो संभाजी महाराज ने किया है। हम्म शिवाजी महाराज ने कभी डायरेक्ट औरंगाबाद पे सवारी नहीं की है। हम्म संभाजी महाराज छत्रपति हुए शिवाजी महाराज के जाने के बाद में, जो औरंगजेब की दक्कन की राजधानी थी, हम्म यानी महाराष्ट्र की राजधानी औरंगाबाद, हम्म उसके नाम से बसा हुआ शहर हम्म संभाजी महाराज ने वही लूट लिया। हम्म और बाद में 1681 में, यानी 1681 में औरंगजेब मुगलों की बड़ी फौज लेके महाराष्ट्र के ऊपर टूट पड़ा है। ओके तो बाद में 3 साल उसको संभाजी महाराज को वो हरा नहीं सका। हम्म वो बाद में पीछे गया, आदिल शाही को हरा दिया, कुतुब शाही को हरा दिया। 2 शाही की बड़ी फौज अपने फौज को मिला दी। मिल ओके टोटल फौज उसकी 6,20,000 की थी। हम्म बाद में 3 साल वापस प्रयास करता है, फिर भी संभाजी महाराज को हरा नहीं सकता है वो। हम्म बाद में उसको पता चला कि संभाजी महाराज को हम खुले मैदान में हरा नहीं सकते, हम्म इसलिए उन्होंने अपने फितूर महाराष्ट्र में छोड़ दी। यानी उसके कुछ गुप्तचर हम्म जिन्होंने पैसा देके कुछ अपने आदमी को फितूर हाँ कर दिया। तो वो संभाजी महाराज पकड़ने के बाद में औरंगजेब को ऐसा लगा कि मराठा डर जाएगा, हम्म संभाजी महाराज को हम ऐसा क्रूरता से मारेंगे। यानी संभाजी महाराज का मृत्यु बहुत क्रूरता से हुआ था, उनकी आंखें निकाल दी गई थी, ऐसा वो सजा हुआ था। तो उसको लगा कि संभाजी महाराज को हम ऐसा खत्म करेंगे तो मराठा डर जाएंगे। लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद में राजाराम महाराज गद्दी पे आए, ताराबाई आई, संताजी, धनाजी, कान्होजी, जो है वो लड़ते लड़ते चला गया। आखिर 1707 में औरंगजेब महाराष्ट्र में मरा, लेकिन वो महाराष्ट्र कभी जीता नहीं। इसका कारण था ये 372 किले। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी की सब कमाई जो है वो 300 ये किले बनाने के लिए खर्च कर दी। अभी ये नेवी का राजधानी था। यहाँ के किलेदार थे सरखेल कान्होजी आंग्रे, जो मराठाओं के नेवी के एडमिरल थे उस टाइम पे। सर इतिहास में सब थे, बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, साजी कंक थे, हंबीराव मोहिते थे, लेकिन 2 ही आदमी को प्रति शिवाजी कहा जाता है, यानी शिवाजी महाराज की तरह रहने वाला प्रति शिवाजी। एक थे सर सेनापति नेताजी पालकर और दूसरे थे सरखेल कान्होजी आंग्रे। नेताजी पालकर क्यों? क्योंकि इतिहास में आप देखोगे कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके चुंगल से कोई भाग नहीं सका, उसने अपने बाप भाइयों को मारा। लेकिन औरंगजेब के हिरासत से निकलने वाले इतिहास में 2 ही आदमी थे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज जो आगरा से रायगढ़ पे आए हैं, और दूसरे नेताजी पालकर कंदहार काबुल से रायगढ़ पे आए। हाँ, दूसरे एक कान्होजी आंग्रे वैसे ही थे। कान्होजी आंग्रे यानी समुंदर का स्वामी, स्वामी यानी भगवान, समुंदर का स्वामी, पानी का प्रति शिवाजी कहा जाता था, समुंदर का प्रति शिवाजी कहा जाता था। ये डच, पोर्तुगीज और अंग्रेज लोग कान्होजी आंग्रे को पानी का शार्क और जमीन की मगरमच्छ कहा करते थे। यानी इतने पराक्रमी थे कि कान्होजी आंग्रे को समुंदर के ऊपर हराना बहुत कठिन था। और मराठी नौदल को, यानी मराठाओं के नेवी को समुंदर के ऊपर अच्छे दिन जो है सुवर्ण काल, वो कान्होजी आंग्रे के जमाने में ही आया है। तो इतना ही कान्होजी आंग्रे पराक्रमी थे। तो कान्होजी आंग्रे का हमेशा यहाँ पे राज्य चलता था। वो यहाँ से ही सब जो शिवाजी महाराज के जलदुर्ग है या 600 जहाज है उनको मेंटेन करते थे, या उनके ऊपर देखरेख रखते थे। मराठाओं के पास सब 600 जहाज थे, 600 जहाज थे। उसमें फतेह जंग, शमशेर जंग, मछुए, पाल, पगार, गलबत, ताराव, तारांड, ऐसे यानी ऐसे अलग अलग नाम के जहाज थे। एक गुराब नाम का जहाज था, उसके ऊपर सर 74 कैनन रहते थे। यानी इतना मराठाओं का नेवल बेस भी बहुत बड़ा था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन थी, इसलिए मराठाओं ने इतना नेवी का अपना बेस बढ़ाया था। अभी आप इस किले के ऊपर आएंगे ना, तो शिवाजी महाराज को अगर आप यानी आपको शिवाजी महाराज के किले पहचानने हैं तो उसकी कुछ खास वैशिष्ट्य है। पहला वैशिष्ट्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के निचले हिस्से में हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। आपको वहां पे मारुति जी का टेम्पल दिखा होगा। ये शक्ति की प्रेरणा देता है। हनुमान जी, यानी किला फोर्ट छोटा का, यानी
कि आपका आपका फोर्ट जो है वो छोटा रहने दो, हम्म, लेकिन उसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर रहेगा ही रहेगा। हम्म, दूसरी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के अंदर शिवलिंग की स्थापना रहती है, यानी हाँ महादेव ओके। का मंदिर रहता है। हम्म, तीसरी बात, तीसरा वैशिष्ट्य कि आपके मंदिर किले के अंदर भवानी माता का टेम्पल रहता है हम्म, हर किले के अंदर। हम्म, और चौथा और महत्वपूर्ण, किले का हमेशा जो मेन एंट्रेंस रहता है हम्म, वो गोमुख स्वरूप का रहता है। यानी आपको मैं बताऊंगा, हम्म, आगे जो किले का मेन ठीक है। एंट्रेंस है वो गोमुख स्वरूप से बना हुआ है, हम्म, जिससे दुश्मन का भारी नुकसान होता है। गौमुख यानी कि गाँव वो गौ कऊ माता कऊ। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैं हाँ आपको बताऊंगा, ठीक है। वहां पे जाके बताऊंगा। ठीक है। ये पहला आपको यहाँ पे दरवाजा दिखा, जीबी का दरवाजा। हम्म, जीबी का दरवाजा यानी किले का इंक्वायरी डोर था। हम्म, आप इमेजिन करो, यहाँ पे पहले लकड़ी का बड़ा दरवाजा रहता था, हम्म, उसको एक छोटा दरवाजा रहता था, और अंदर आने हाँ, की। अंदर आने के लिए, यानी एक टाइम पे एक आदमी अंदर हम्म, आएगा। हम्म, इस देवड़ी बोलते हैं इसको मराठी में, इस हम्म, जगह पे अपना किले का जो मेन आदमी, यानी हम्म, यहाँ पे जो मेन जो इंक्वायरी गेट पे रहेगा हम्म, वो इंक्वायरी करेगा, हम्म, और बाद में जब किलेदार का आदेश आएगा हम्म, तभी उसको किले के मेन एंट्रेंस में वो भेजेगा। ओके। इस प्रकार से यहाँ पे कारोबार चलता था। वाह। अभी आप इस दीवार पे सर देखो, हाँ इस दीवार के ऊपर आपको जो धब्बे दिखाई देते हैं, हाँ। ये धब्बे जो है वो तो कैनन बॉल के किए गए फायर है। तो अभी गवर्नमेंट ने बंद किया है, हाँ, ये क्लोज किया। ऐसे ऐसे जो हाँ बड़े होल गिरे थे इस दीवार को, करेक्ट। वो पैचिंग किया है। पैचिंग किया ओके। हाँ, ये केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने पैचिंग किया है हम्म, इसका। और बाद में जो कुछ कुछ जो वो थे वो निकल गए हैं। हम्म। ये कैनन बॉल के फायर ब्रिटिशों ने किया था। सी भी हाँ, समुद्र से। हाँ, इस बैकवाटर पे अपने बैकवर्ड। बड़े जहाज लाके हम्म, यहाँ पे फायर किया था। इसका कारण था ये कि मराठा क्या करते थे हम्म, कि तुम लोग व्यापार के लिए हम्म, हमारे समुद्र के सीमा इस्तेमाल कर रहे हो, हम्म, आप जो यहाँ पे व्यापार कर रहे हो ब्रिटिश पोर्तुगीज, तो हमारे समुद्री सीमा इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमको उसका टैक्स दो। करेक्ट। और इसलिए इनका भारी भरकम नुकसान होता था, अंग्रेजों का या पुर्तगालियों का नुकसान होता था। इसलिए वो मराठाओं के किले के ऊपर अटैक करते थे कि मराठा हमारा नुकसान कर रहा है। और मराठाओं की दहशत इतनी थी उस टाइम पे समुद्र के ऊपर कान्होजी आंग्रे की, कि मराठाओं के पास के सिवा कोई भी परकीय यानी कोई भी दूसरा देश का आदमी अपने समुद्र के ऊपर प्रवास नहीं कर सकता, ओके। व्यापार नहीं कर सकता। मराठों को उसको टोल देना ही पड़ेगा। ओके गुड। इतना, हाँ, इतना यहाँ पे मराठाओं ने दहशत बना के रखा था। तो इसलिए अंग्रेजों ने हमेशा एक किला जीतने का, क्योंकि ये राजधानी का किला था नेवी की, करेक्ट। तो एक जीतने का प्रयास किया था, लेकिन कभी उनका वो सक्सेस नहीं हुआ, दीवार तोड़े नहीं कभी। एक अंग्रेज था, उसका नाम था वॉल्टर वुड। उन्होंने उसको मालूम पता चला कि किले के ऊपर आदमी कम है, क्योंकि यहाँ के जो एडमिरल थे कान्होजी आंग्रे, उनकी बेटी की शादी थी, तो सब बाहर चले गए थे शादी के लिए। कुछ ठराविक आदमी किले के ऊपर थे। तो उसने उस टाइम पे अंग्रेजों की बड़ी शिप लाई थी, उसका नाम था फार्म नाम का जहाज, फार्म नाम का जहाज बनाया था। उस फार्म का इतिहास में उल्लेख ऐसा होता है कि वो तरंगता किला था, इतना बड़ा जहाज था कि वो तरंगता किला जैसे दिखता था। तो उसने उस फार्म से ऊपर एक 7-8 दिन तो कैनन बॉल के फायर वो किले के ऊपर करते चला गया, लेकिन उसको कभी दीवार टूटी नहीं। ओके। वो ऐसा बोलता था कि हमारे फेंके हुए गोले, एक कपास के गोले या लकड़ी का जो भूसा रहता है, वो भूसे के गोले की तरह इस दीवार पे पटकते थे, लेकिन इसके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता था। इसलिए अंग्रेजों ने इस किले का उल्लेख आपको जिब्राल्टर नाम से किया है, क्योंकि इंग्लैंड और स्पेन के बीच में एक रॉक ऑफ जिब्राल्टर नाम की पहाड़ी है, वो तोड़ना नामुमकिन बात है। या जिब्राल्टर की खाड़ी जो है वो तैर के पार करना नामुमकिन बात है, वैसे ही दीवार तोड़ना या पार करना नामुमकिन बात लगती थी, इसलिए उन्होंने उसको जिब्राल्टर नाम से उल्लेख किया है। हाँ? आपको सर इस दीवार के ऊपर देखो छोटे होल या बड़े होल दिखाई देते हैं। इसको हम मराठी भाषा में जंगी बोलते हैं। ये उस टाइम के गन पॉइंट है, हाँ, वहां से लेके फायर करते थे। हाँ, आर्मी का सर एक नियम है, एक गोली एक आदमी। गोली आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए और आपका निशाना भी चूकना नहीं चाहिए। वेरी गुड। जब आप किले के ऊपर लड़ रहे हो तो आपको जितना अनाज है, जितना बारूद है, उसके ऊपर ही किला लड़ाना है, आपको बाहर से मदद नहीं आ सकती। करेक्ट।
तो अपना आदमी जब अगर ऊपर से मारने को लगेगा तो यहाँ से जाने वाली गोली उसको लग सकती है, लेकिन वो दीवार पे जाएगा ना तो वो उसका दीवार प्रोटेक्शन देगा। करेक्ट। उसकी यहाँ से गोली डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो अंदर से देख सकता है कौन क्या कहाँ है, मार खाली दिखा तो नली घुसाने का और फायर करने का। उसमें भी दो प्रकार है, छोटे हो वाले वो होल दिखते हैं ना, हाँ छोटे, वो गन पॉइंट है, सब मारगिरी की जंगी बोलते हैं ओके उसको। हाँ और ये जो लंबे वाले होल दिखते हैं ना, लंबे, हाँ वो वेंटिलेशन या किले के ऊपर जो बारिश का पानी गिरेगा हाँ वो बाहर जाने के लिए। अगर ओके, बारिश का पानी रुकेगा हाँ ना हाँ हाँ तो हाँ वो अंदर जाएगा और करेक्ट, वापस वो बांधकाम खराब करेगा। इसलिए किले का बाहर का बारिश का पानी बाहर जाना चाहिए, ओके इसलिए ऐसे वो पॉइंट बना के रखते हैं। ओके। आपको यहाँ पे मैं फांजी दिखाऊंगा। क्या दिखाएंगे? फांजी, फांजी यानी जैसे वो गन पॉइंट है ना, वैसे ये कैनन बॉल के लिए जो कैनन बॉल के जो गाड़े रहते थे ना, उसको लगाने के लिए जगह रहती थी। ओके ओके, वो फायरिंग करने के लिए, फायरिंग करने के लिए। ओके। सो पार्ट 2 लेसी का ना